Everybody is searching. So Hare Krishna mantra in Narayana Astra, like this, like they are singing, same tune of Jayarada Madhav, continue singing Hare Krishna. When you sing Hare Krishna, remember the things which you have faith, very strong, like the Goswamis, Prabhupada, and keep the tune same. And you can go for 1 or 2 hours, it is very strong. Otherwise, the whole focus goes on tune, not on the prayers. Chalo. Okay, good. So live it is. I have given 14 to 16. Today we are a little late, so I'll chant the shlokas myself. Parishranteedriyatmaham परिश्रियान्तेन्द्रियामहं Pariso bhukshitaha हृत्परितो बुभुक्षितः Natva pitva हृदे नद्या नात्वा पीत्वा हृदेन पृष्ठो गतोष्णः उपस्पृष्टो गतश्रमः Parishranta, being tired, Indriya, bodily, Atma, mentally, Aham, I, I, Tritva, being Parita, being thirsty, and hungry, Snatva, taking a bath, Pitva, and drinking water also, Hraday, in the lake, Nadyaha, of a river, Upasprishtaha, being in contact with, Gata, got relief from, Shamaha, tiredness. Thus traveling, I felt tired both bodily and mentally, and I was both thirsty and hungry. So I took bath in a river lake and also drank water. By contacting water, I got relief from my exhaustion. Thus traveling, I felt tired, both bodily and mentally. And I was both thirsty and hungry. So I took bath in a river lake and also drank water. By contacting water, I got relief from my exhaustion. Yes, Shampita Mataji. She's not there. Hare Anybody? Krishna Prabhuji. Yeah, need the purpose. Okay. Hare Krishna. A traveling mendicant can meet the needs of the body, namely thirst and hunger, but the gifts of nature without being a beggar at the doors of householders. The mendicant therefore does not go to the house of a householder to beg but to enlighten him spiritually. Hare Krishna. Hare Krishna. तस्मिर निर्मनुजे अरण्ये तस्मिन्निर्मन्युचेरन्ये विपलोपस्त आश्रितः विपलोपस्त आश्रितः आत्मनात्मानम् आत्मस्थम् आत्मनात्मानात्मस्थम् यथा श्रुतम् अचिन्तयम्. यथा श्रुतम् अचिन्तयम्. After that, under the shadow of a banyan tree in an uninhabited forest, I began to meditate on the super soul situated within, using intelligence, as I had learned from the liberated souls. Yes, Shampita Mataji. Hare Krishna. One should not meditate according to one's personal whims. One should know perfectly well from the authoritative Source of scripture. source of scriptures through the transparent medium of a bona fide spiritual master and by proper use of one's trained intelligence for meditating upon the super soul dwelling within every
living being. The consciousness is firmly developed by a devotee who has rendered loving service unto the Lord by carrying out the orders of the spiritual master. Sri Naradji contacted bona fide spiritual masters, served them sincerely, and got enlightenment rightly. Thus he began to meditate. As soon as I began to meditate upon the lotus feet of the personality Godhead within my mind, with my mind transformed in transcendental love, tears rolled down my eyes. And without delay, the personality Godhead Shri Krishna appeared on the lotus of my heart. Yes. The word bhava is significant here. The bhava stage is attained after one has transcendental affection for the Lord. The first initial stage is called Shraddha, or a liking for the Supreme Lord, or in order to increase the liking, one has to associate with pure devotees of the Lord. The third stage is to practice the prescribed rules and regulations of devotional service. This will dissipate all sorts of misgivings and remove all personal deficiencies that hamper progress in devotional service. When a misgivings and personal deficiencies are removed, there is a standard faith in transcendental matter, and the taste for it increase in greater proportion. This stage leads to attraction, and after this there is bhava, or the period stage of unalloyed love for God. All the above different stages are but different stages of development of transcendental love. Being so searched with transcendental love, there comes a strong feeling of separation which leads to a different kind of ecstasies. Tears from the eyes of a devotee is an automatic reaction, and because Sri Narad Muni is his previous birth attained that stage very quickly after his departure from home, it was quite possible for him to perceive the actual presence of the Lord, which he tangibly experienced by his developed spiritual sense without material tinge. Hare Krishna Prabhuji. That is something I was searching for. Okay. O Vyasa, at that time, being exceedingly overpowered by the feeling of happiness, every part of my body became separately enlivened. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. Spiritual feelings of happiness and intense ecstasies have no mundane comparison. Therefore, it is very difficult to give expression to such feelings. We can just have a glimpse of such ecstasy in the words of Sri Narad Muni. Each and every part of the body or senses has its particular function. After seeing the Lord, all the senses become fully awakened to render service unto the Lord, because in the liberated stage the senses are fully efficient to serve the Lord. As such, in this transcendental ecstasy is so happened that the senses become separately enlivened to serve the Lord. This being so, Narad Muni lost himself in seeing both himself and the Lord simultaneously. Hare Krishna. Om Hare Jnana Krishna. Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisheshaya Shunyavadi Pashati Deshatarine. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Premati Bhara Nirbhinna
उलुकांगो अति निर्वृतः उल्को अति निर्भीता आत्मा संप्लवेलीनो आत्मा संप्लवेमीनो वयं मुने. न पश्यन्तु न Oh Vyasa, at that time, being exceedingly overpowered with the feeling of happiness, every part of my body became separately illumined. Being absorbed in an ocean of ecstasy, I could not see both myself and the Lord. Hare Krishna. So, actually, we are searching for somebody. Therefore, anybody sitting, we see, Anna, what is the reason? The various reasons. One of the reasons is actually we are searching for somebody. In a bus also somebody climbs. Who has come? Even flight we want window seat. Trying to see. What are you searching for? Actually we are all searching for Krishna. We are all missing him. And now, and somebody is very nice, somebody is very kind, somebody is very powerful. We somehow tend to make him like a hero within the heart. Like a movie they create, somebody like a hero, they create all the scenes, he'll help a small child, he will do good to these people, he'll smile, he'll be nice. Now people's standard of nice is also, I don't know what, he's smoking also, he's drinking also. That is also nice nowadays. Otherwise, it has to fit in the frame of being nice. And people, oh, he's my hero. And then he will do whatever funny things. So, and why do people go to watch movies? Because they have a vacuum in their heart. There is no hero in their heart. And for that 2 hours, 3 hours, they had a hero. Because people like to have a hero in their life. And they try to put this person, that person, and finally that person fails to be a hero. And then they get frustrated. Kya hai duniya? And then they drink and they sleep. Okay? But actually there is a hero, natural hero, and all the people you are trying to be the hero, it doesn't work out. They can't reciprocate your affection. Whatever hero you made, you go, sometimes people will see in the cricket match or football match, अरे ये तो हिंदी की क्लासेस हो रही. हिंदी अच्छा लगता है आप लोगों को? इंग्लिश? कौन सा लैंग्वेज प्रेफरेबल है? प्रभु जी हिंदी हिंदी अच्छा लगता है प्रभु जी. ये तो हिंदी का क्लास था, हाँ मैं भूल गया. ठीक है, तो देखते हैं ना कुछ लोग क्रिकेट मैच फुटबॉल मैच में भी वो स्टेडियम से कूद के भागते हैं, है ना, जस्ट टू टच कोई बैट्समैन या फुटबॉल स्टार, उसको जस्ट छूने के लिए या उसके हैंड शेक करने के लिए. बड़ा रिस्क लेते, उसके अरेस्ट हो जाते हैं. क्या उसको मतलब नहीं हो सकता, पागल हो जाता है, पागल हो जाते हैं लोग. कुछ लोग फेंट हो जाते हैं अपने हीरो के सामने. कोई हीरो चल रहा होता है अपना, लोग उसके बेहोश हो जाते हैं. उनके बॉडीगार्ड्स रहते हैं to protect them because people get faint sometimes. इतना people build up, but actually that person is very ordinary. एक बारी नेपाल में क्या हुआ, अपना कोई फेमस विकेट कीपर, अभी तो रिटायर हो गया, बहुत फेमस था, कैप्टन भी था, तो उसको बुलाया नेपाल में, एम्बेसी ने बुलाया. तो सारे इंडियंस 2000 है 3000 लोग, क्योंकि मैं नेपाल में कुछ टाइम जाता था, पिताजी वहाँ रहते थे तो जाता था. तो 2000-3000 लोग इकट्ठे हुए उसको देखने के लिए. ठीक है, वहाँ तो कुछ है नहीं, तो ये एक हीरो आ गया इंडिया. और सब लोग जब इकट्ठे हुए, वो बात क्या करेगा, उसको कुछ आता ही नहीं बात करने का. लोग बैठे बैठे बोर हो गए. फिर लोग बॉल फेंक रहे थे, पकड़ रहे थे, क्या ये करोगे. तो फाइनली लोगों को देखा ये क्या हीरो है, तो जीरो है, इससे क्या करेंगे क्या हम. कृष्णा ऐसा हीरो नहीं है. इसलिए देर इज़ वन चैप्टर इन किताब है नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसमें 64 क्वालिटीज़ एक व्यक्ति की लिखी गई हैं. 64 क्वालिटीज़. जैसे होता है ना, पर्सन इज़ वेरी जेंटल, पर्सन ड्रेसेस हिमसेल्फ, ऐसा नहीं है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है. कृष्णा इज़ ब्यूटिफुल, अनइमेजिनेबल. जो वृंदावन में जिसने देखा वो उससे ही शादी करना चाहता है. और कृष्णा ब्यूटी का न्यूज़ मथुरा पहुंच गया. और कृष्ण मथुरा गए थे ना कंस को मारने. ही वॉज एट दैट टाइम यंग, ओनली 12 year old, समथिंग लाइक दैट. एंड कृष्णा वॉज वॉकिंग इन स्ट्रीट्स ऑफ मथुरा. तो लड़कियां अपने होता ना छज्जे से देख रही थी, वही बेहोश हो गई देख के. कृष्णा वॉज सो ब्यूटिफुल. इन द्वारका कृष्णा हैड हाउ मेनी वाइफ्स?
only 16,108 wives. And each were so happy. When there was a meeting in Kurukshetra, so Krishna came with his whole team, 16,100 wives. And Draupadi met them and she was asking, how do you feel? जैसे वो नौकर के लिए जैसे भी रख लेना तब भी रहूंगी उसके साथ. You are so touched by him. वैसा भाई है कोई दुनिया में? He is so beautiful. Even जब युद्ध होता था, जब it is mentioned कालिया ने जब युद्ध में कृष्ण को अटैक करने आया ना, सबसे पहले ये इतना सुंदर है. इवन दानव भी लड़ते समय है बहुत सुंदर. His beauty surpasses the whole. Actually, beauty का definition ही राधा कृष्ण से शुरू होता है. अभी ये beauty is a very and I have come to another line. बहुत ही मुश्किल है beauty को define करना, है ना? बहुत मुश्किल हो जाता है. साइंटिस्ट और फिलोसोफर तो टोटल कंफ्यूज हो जाते हैं. भाई नाक को इधर की जगह होता है ना, मैं बहुत बारी बताया, लेपर की नाक गिर जाती है, देखने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमको, है ना? क्या प्रॉब्लम हुई? तो अच्छे से सांस ले रहा है, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, हमको प्रॉब्लम हो जाती है. नहीं देखा जाता ना, अगर सांस बस में बैठे उड़ के खड़े हो जाते हैं, भाई नहीं हमको तो उल्टी आ रही. क्यों भाई? बिकॉज एक्चुअली हम कृष्ण से कंपेयर करते हैं. कृष्ण से कंपेयर करते हैं, जितना मैच होता है बहुत सुंदर लग रहा है. और लड़की को राधा रानी से कंपेयर करते हैं. द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी स्टार्टिंग फ्रॉम कृष्णा एंड राधा रानी. राधा कृष्ण से ब्यूटी के डेफिनेशन शुरू होती है. ठीक है? सो दैट वे वी कैन अंडरस्टैंड. Surpassing. So Krishna is the hero in all angles. Not only he is beautiful, he speaks very gently, he is very sweet, he is every angle, 64 qualities are present in Krishna unlimitedly. कृष्ण के पास 64 कला कितनी है? Unlimited. और हमारे पास कितनी है? उनमें से 50 काली हमारे पास होती है लिमिटेड, थोड़ा सा 0.1%. Krishna has it like an ocean, unlimited each one of the qualities. इन वृंदावन में किसी को ये मालूम नहीं है कि कृष्ण जी भगवान है. कृष्ण भुला देते सब. ठीक है? बट स्टिल व्हेन जब बच्चे खाना खा रहे होते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इज कृष्ण. सबकी नज़र कृष्ण पे होती है. क्यों भाई? किसी को तो मालूम नहीं कृष्ण जी इज पावरफुल एंड भगवान. वाई देयर एंटर? बिकॉज पर्सनल क्वालिटीज. इन वृंदावन कृष्ण की पूजा होती है उनके गुणों की वजह से, शक्ति की वजह से नहीं. उनको शक्ति प्रदर्शन से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं. जब कृष्णा आपके बकासुर इनको पिटाई टाई करते हैं तो उस समय उनके फ्रेंड्स आते हैं, कृष्ण जी मैं शायद आपसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, आ जा लाओ. उनके बहुत सारे दोस्त हैं, सुबला दिसबला, बहुत सारे दोस्त हैं, स्टोका कृष्णा ये सब, तो लड़ने आ जाते हैं. एंड कृष्ण जी अलाउज देम टू विन ओवर देम. वो कृष्ण को डिफीट कर देते हैं. मम्मी घर जाके कृष्ण ने बकासुर को डिफीट किया, मार दिया. हाँ, लेकिन मैंने कृष्ण को डिफीट कर दिया. तो उनको तो ये मालूम ही नहीं है कि वो भगवान है, और ये भी सोचते हैं उनसे कम शक्तिशाली है. बट स्टिल उनकी नज़र उसी पे रहती है. जब वो कृष्ण बुक में है ना डिस्कशन, जब जंगल के तरफ जा रहे हैं सब लोग, मैं कृष्ण को पहले पकड़ूंगा, मैं कृष्ण को पहले पकड़ूंगा. सबकी नज़र उसी पे. खाना खा रहे हैं, चारों तरफ झुंड बना के कृष्ण को सेंटर में रखते हैं. क्यों भाई? किसी को मालूम नहीं है भगवान है. क्यों? एक तो सुंदरता, सबका कलर गोरा है और कृष्ण का कलर काला नहीं है. ये जो बादल है ना ऐसा कलर होता है, और श्यामा, और ऐसा सुंदर होता है कि बस सबको देख देख के फेंट हो जाते हैं. इतना सुंदर, खुशी होती है देख के, और सबकी नज़र उधर ही होती है ना. तो कृष्ण को वृंदावन में जाते हैं गुणों की वजह से. सो कृष्णा इज असली हीरो है, ताकत से भी गुणों से भी. इन एवरी एंगल ही इज एक्चुअल हीरो. अब ये हीरो से बहुत टच में थे. और इसके क्या होता है ना, इनकी लीला होती है. पता है कृष्ण ने क्या बोला? पता है, जैसे आपके घर में कोई प्यारा बच्चा होता है, पता है उसने आज ये बोला. जैसे हस्बैंड घर में आते हैं, आज बेटा हमारा प्यारा ये बोला, तो सब लोग खुश होते हैं, सब लोग डिस्कस करते हैं, सारे रिश्तेदार दोस्त खुश होते हैं. पूरे वैकुंठ जगत में हर दिन कृष्ण की लीला ही डिस्कस होती है. टोटली सब लोग एन्चेंटेड रहते हैं. एंड क्योंकि सब्जेक्ट स्पिरिचुअल है, सबका हार्ट प्योर रहता है. अभी हम उसी के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं. सुबह शाम कर क्या रहे हैं? कीर्तन कर रहे हैं. किसका? कृष्ण का, है ना. उन्हीं का नाम जप किया, किसी और का नहीं. हमने पॉलिटिकल रैली में मोदी मोदी नहीं किया, है ना. हम क्या नाम जप कर रहे हैं?
कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं। क्या होता है कृष्ण का नाम जप करने से, जप करने से, जप करने से, जप करने से, जप करने से हमारा मन धीरे धीरे कृष्ण की तरफ चला जाता है। अभी हम भागवत सुन रहे हैं, सुबह भी सुनी, अभी भी सुन रहे हैं, हमारा मन धीरे धीरे कृष्ण की तरफ चला जाता है। और इससे ये साधना है। ये क्या है? साधना। और इससे हृदय को बहुत शांति मिलती है, बिकॉज ये आत्मा का स्वरूप है। तो सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को पूछा कि आत्मा का क्या स्वरूप है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला, जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप हो कृष्ण का दास। तो हम जब हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते हैं, क्या होता है? आनंद आता है। ये ओरिजिनल नेचर है हमारा। जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तारा दुख नाई। अगर हम अपना शरणागति भगवान की करते हैं तो पूर्ण रूप से सुख हो जाता है, पूर्ण रूप से हृदय में खुशी आ जाती है। तो नारद मुनि क्या कर रहे हैं? उनको संत पुरुषों का संग मिला। कैसे संत? इतने महान संत प्रभुपाद जी, उनका नाम भक्ति वेदांतास बोलते हैं, है ना, रेफरिंग टू देम एज ग्रेट डिवोटीज। अपना टाइटल दे दिया, ऑर्डिनरी नहीं है फिर वो, है ना। एंड इनका शक्ति देखिए, वो छोटे से बालक को, नन्हे बालक को उन्होंने आशीर्वाद दे के चले गए। उसको बोलते हैं दीक्षा, इनिशिएशन करके गए, ठीक है। उसको आध्यात्मिक सुख का दर्शन दे के चले गए, आशीर्वाद दे के चले गए, ठीक है। और उस बच्चे के भी गुण थे, है ना, इसमें ऑलरेडी बताए बहुत सारे गुण। और उसके बाद बच्चा दीक्षा लेने के बाद बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी रोने पीटे के चल रहा था। बहुत थक गया। ये हमने दो चीज़ डिस्कस करी लास्ट दिन। बहुत बेचा भूखा, चलता चलता उसकी माँ मर गई, है ना, सांप ने मार दिया, लेकिन टूटा नहीं। और शहर से निकला, जगह से निकला, किसी चीज़ से उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, चलता रहा, थक गया। किस लिए चल रहा था? भगवान को ढूंढ रहा था, ठीक है। और जाके जंगल में एक जगह देखा तालाब है, तालाब में पानी पिया, नहाया। नहाने से पानी का बड़ा अद्भुत चीज़ है। पानी शरीर को ही नहीं धोता, मन को भी धो देता है। इसलिए आप कभी स्नान करते हैं, बड़ा फ्रेश लगता है, नहीं? लेकिन थोड़े कुछ मिनट में हम फिर गंदे हो जाते हैं। लेकिन स्नान करने के बाद मन भी फ्रेश हो जाता है, शरीर भी फ्रेश होता है, मन भी फ्रेश होता है। तो पानी में सटल कंपोनेंट है जो मन को धोता है ना। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए आचमन सब वाटर से, वाटर, पानी को बहुत, भगवान का भी अभिषेक करते हैं। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवे, सो पानी में नहाएंगे तो आपको फ्रेश होगा। और जब भी व्रत कर रहे होते हैं, कभी किसी ने व्रत किया, कल व्रत चल रहा था, मैं तो 5 बजे तक रुक पाया, फिर क्लास के लिए रेडी हुआ, मैं खा लिया कुछ, पानी पी के हम रोके ना, है ना। भूख, अगर जो निर्जल करते हैं वो तो भाई तपस्वी है, अगर कर रहे हो पानी पी लो, थोड़ा भूख मिट जाती है ना। मैं तो लेटा हुआ था, कुछ लोग पानी पी के काम भी कर पाते हैं, मैं तो काम नहीं करता। कुछ लोग, मेरे को तो खाना पड़ता है काम करने के लिए। कुछ लोग हैं, अभी थोड़ा कंसेशन मिलता है जैसे उम्र बढ़ती है। जब यंग था मैं निर्जल करता था, अभी नहीं करता, बिकॉज शरीर कमज़ोर है अभी। एनीवे, तो अब पानी पी के क्या होता है, आपको थोड़ा भूख मिट जाती है। तो वही नारद मुनि वह बहुत भूखा था, प्यासा था, पानी पिया, प्यास मिट गई, और थोड़ा पेट भी शांत हो गया, और नहा के फ्रेश हो गया। और उनके आशीर्वाद था, मन में भगवान के लिए प्रेम था, भगवान के लिए, भगवान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उसका भाग्य था कि एक रियल हीरो के बारे में सोच रहा था, और जिस हीरो को हम जन्म 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 से ढूंढ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहा था। और भगवान ने कृपा करके उसको दर्शन दे दिया। अकेला बच्चा, उन पे उसकी माँ मरी तब भी रोए नहीं। इतने जगह जगह भगवान उसको टेस्ट कर रहे हैं। देखिए, ये स्पेशल हमारे साथ तो नहीं हुआ, हम भी जपा शुरू किए थे, लेकिन इतना जरूर है, भक्ति की शुरुआत में एक बोनस मिलता है। जब हम भक्ति शुरू करते हैं, बड़ी एक्सटेसी आती है, वो नेक्स्ट दिन नहीं आती, थोड़े टाइम बाद चले जाती है। वो टेस्ट होता है। वो क्या होता है, शुरू में भगवान एनकरेज करने के लिए आपको, जैसे आपके कोई शुरू में आप एनकरेज करने के लिए थोड़ा बोनस दे देते हैं, वो बोनस आगे नहीं मिलता, प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये भक्ति में भी होता है। शुरू में जब हम शुरू करते हैं बड़ा आनंद आता है, फिर उसके बाद कृष्ण बोलते हैं आप मेहनत करो इसको पाने के लिए। जैसे आपको एक होता है ना, एक लालच दे देते हैं भगवान।
शुरू में इतना आध्यात्मिक, इतना सुंदर जगत, वैकुंठ का अनुभव हो जाता है, बहुत खुशी होती है। और उसके चक्कर में तो सब कुछ छोड़ देते हैं उसको पाने के लिए, लेकिन उसके बाद बड़े कष्ट दिखने लगते हैं। क्यों? भगवान बोलते हैं अब तू मेहनत कर इसको पाने के लिए। तो नारद मुनि को भी कृष्ण जी शुरू में दर्शन दे देते हैं। हम इतने भाग्यशाली तो नहीं है दर्शन, बिकॉज नारद मुनि की क्वालिटीज हम पे नहीं है, वो तो भाव स्टेज में ऑलरेडी पहुंच चुके थे। उनको भगवान ने दर्शन दिया और दर्शन देने के बाद गुप्त हो गए। तो नारद मुनि रोने पीटने लग गया, छोटा बच्चा जंगल में रोने लग गया। उसको बहुत आनंद आया, अभी उसका डिस्कशन हो रहा है, बहुत ही आनंद आया भगवान का दर्शन। बिकॉज जो सुख होता है ना भगवान को दर्शन करके, वो आध्यात्मिक सुख है, एक भौतिक सुख नहीं है। कैसा सुख है? आध्यात्मिक सुख है। इसलिए जब आप भगवान का नाम का स्मरण करते हैं तो उसको बहुत ध्यान से करिए, उसमें बहुत आनंद है। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं, हम अपने जप की माला ख़त्म करने में लग जाते हैं, हम कंसंट्रेट करना भूल जाते हैं। आनंद कंसंट्रेशन में है। जितना आप स्ट्रगल करोगे कंसंट्रेशन में, उतना आनंद निकलेगा। और कंसंट्रेशन के प्रयास में कोई लिमिट नहीं है। जैसे आप अभी जप किए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं इससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके करूँगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं इससे भी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करूँगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इससे भी ज़्यादा ऐसे जप होना चाहिए। हर अटेम्प्ट में देखो मैं और इम्प्रूव कर रहा हूँ कॉन्सेंट्रेशन। ये नहीं माला यार 4 ही हुई, माला नींद आ रही है, चलो नहीं। हरे कृष्ण, एक आप संघर्ष में बैठे हैं, एक स्ट्रगल में बैठे हैं। और इतना मेरा एक्सपीरियंस है 30 साल का, आनंद उसके अंदर छुपा हुआ है। जब भगवान आपके स्ट्रगल देखेंगे, जैसे नारद मुनि ने उनको मेडिटेट करने की कोशिश किया, भगवान प्रकट हो गए ना, तो भगवान प्रकट, देखो भगवान प्रकट हो या नाम का आनंद प्रकट हो, है तो एक ही चीज़, फर्क कुछ तो नहीं है। नाम में और भगवान में कोई फर्क नहीं है। आपको असली और उसकी वजह से भक्ति को, एक बार ही प्रभुपाद जी पूछे कि आप लोग नाम जप क्यों करते हैं? तो प्रभुपाद जी आपने शास्त्र में लिखा हुआ है, आप भी बोलते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोला नहीं। बोला क्यों? आपको अनुभव है कुछ सुख का। अरे कोई बोला और आपको कोई सुख का नहीं, कितने थे हमको प्रभुपाद को, हम किसको, कौन जानता था प्रभुपाद को? कोई नहीं जानता था। हमको भी आप जानते थे तो क्या? नहीं। लेकिन आप क्यों जपा शुरू किए और जपा मेंटेन कर रहे हैं, आपको सुख का अनुभव हो रहा है। सच है? नहीं तो आप कंटिन्यू नहीं करेंगे। करेंगे 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, बहुत ड्राई, हरे कृष्ण हरे, ठीक है ना। तो इसमें प्रयास, संघर्ष करिए सुनने में। कभी कभी नाम अपराध हो जाते हैं हमसे। देखिए क्या, कभी कभी भगवान की पूजा में अपराध होते हैं और नाम जप से पूजा अपराध निकल जाते हैं। जैसे आप भगवान के अभिषेक कर रहे थे, थोड़ा एक विग्रह हिल गया, आप सेवा कर रहे थे, 64 अपराध है, कुछ भी हो जाता है गलती से, है ना। ठीक है, तो आप बैठ के ध्यान से नाम जप करेंगे, वो जो आपके पंचरात्र अपराध जो है वो माफ़ हो जाते हैं। लेकिन नाम जप का अपराध माफ़ करने के लिए कहाँ जाओगे? नाम ही है, उसके नीचे कुछ नहीं है। तो आपको नाम जप ही करते रहो, नाम जप के अपराध उसी से निकलेंगे। और नाम जप करते करते स्वीटनेस शुरू हो जाएगी। जैसे आपके नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी बहुत सुंदर श्लोक बताते हैं ना, बोलते जैसे जॉन्डिस होता है किसी को, तो आप शुगर केन जूस देते हो, शुगर केन जूस का टेस्ट उसको उसमें नहीं लगता है। किसी को जॉन्डिस हुआ था? नहीं हुआ, पीला आपको हुआ था, उसमें शुगर, उसमें मिठाई का टेस्ट नहीं आता ना, हाँ। लेकिन आप उसमें, एलोपैथी में तो कोई क्योर नहीं है, आयुर्वेद में क्या बोलते हैं, गन्ने का जूस पियो, पिलाते हैं ना घर वाले गन्ने का जूस, उसमें उसका स्वाद नहीं आता, लेकिन गन्ने का जूस ही उसका दवाई है और उसके बाद टेस्ट भी वही देता है। तो सिमिलरली जब नाम जप कर रहे हैं, हमको अभी टेस्ट नहीं आ रहा बिकॉज गन्ने का जूस का जैसा, हालांकि बीमार है हम। जॉन्डिस में गन्ने के जूस की कोई गलती नहीं, गलती आपकी, आप जॉन्डिस में हो, आपको टेस्ट नहीं आ रहा। जो महान भक्त होते हैं भगवान का, एक बारी नाम सुन के बेहोश हो जाते हैं या उनके शरीर में तरह तरह के विकार आने लगते हैं, है ना। निवृत्ततश उपगीय माना भवौषधीशोत मनो अभिरामा। लोगों को अलग अलग प्रभाव होते हैं सेम चीज़ से, डिपेंडिंग अपॉन उनका स्पिरिचुअल लेवल, ठीक है।
शुद्ध भक्त तो भगवान का नाम सुन के बहुत खुश हो जाते हैं, और कुछ को इरिटेशन होती है, कुछ को पवित्रता लगती है। निवृत्तशयोपी, बहुत टाइम हो गया समझाया हुआ श्लोक। जो महान भक्त हैं उनको तो तृष्णा नहीं है। हाँ, कोई तृष्णा मतलब इंद्रिय भोग की भूख, प्यास इंद्रिय भोग की, है ना, उनके पास नहीं है। इसलिए उनको जब नाम जब होता है सूखी घास की तरह जल जाते हैं, पागल हो जाते हैं। गीता का भागवत क्लास बहुत अच्छा लगा है। उसके बाद नेक्स्ट होता है शोत मन, उसको वो औषधि की लिखता है, भवौषधि, क्या दवाई की तरह। गीता का क्लास सुना, भागवत सुना, जब किया, बड़ा मान को शांति लग रहा है, उसको औषधि की तरह। सेकंड लेवल साधका। थर्ड लेवल होता है आदमी, वो साधका भी नहीं है, जब भी नहीं कर रहा ढंग से, लेकिन पुण्यात्मा है, आपका प्रोग्राम में आता है, बड़ा अच्छा लगा मेरे को आज, पुण्यात्मा है, ठीक है। और चौथा लेवल होता है आदमी जो पशुगुना, जो पाप कर्म कर रहा है, उस आदमी को पशुगुना का डायरेक्ट मीनिंग है जो मांस खा रहा है, और बाकी पाप कर्म भी अपने ही आत्महत्या खुद कर रहा है, महापाप करके कुछ, इंक्लूडिंग मांस खाना। वो आदमी को अगर आप हरिना, क्या ये इरिटेट हो रहा है, मैं, उस आदमी को इरिटेशन हो जाती है। 4 तरह के लोग हैं। आप संकीर्तन करो, एक आदमी खुशी से पागल होता है, आपके साथ नाचने लगता है। एक आदमी बोलता है यार बड़ा अच्छा लग रहा हो। बहुत टाइम देखा आप ट्रेन में संकीर्तन करते हैं, कुछ लोग उधर जाके बैठ जाते हैं, उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती, उनको अच्छा लग रहा है, वो दवाई की तरह लग रहा है, वो उठेंगे नहीं उधर से। हमारे बहुत कीर्तन होते, लोग जाके बैठ जाते हैं, अच्छा लग रहा है, बस बैठे ही रहते हैं, है ना, प्यारा लग रहा है। अभी उतना विश्वास नहीं कि मुंह से जप करें, लेकिन उनको उसका कुछ फ़ायदा लग रहा है, छोड़ना नहीं चाहते। मेरे को खुद याद है जब हम लोग कंपनी में काम कर रहे थे, तो हम 4-5 लोग थे, तो उसमें एक आदमी तो सुने ही नहीं, माने ही नहीं कि वो करेगा कीर्तन, मतलब जब हमारे साथ प्रोग्राम में आएगा, माने ही नहीं। तो एक दिन क्या हुआ, हम सब ने देखा, हमारे पास उसमें कैसेट प्लेयर होता था ना, उसके पास हरे कृष्ण की कैसेट मिलती थी इस्कॉन में, वो लगी हुई थी। तो हमने शाम को कंपनी से, मैंने कहा हमको तो बोलता रहता है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, दरवाज़ा बंद करता था। जब हम बात करते थे ना, कुछ प्रभुपाद का बुक्स पढ़ा, उसको डिस्कस, मेरे को ये सब नहीं सुनना है, दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता था। हमने कहा हमको तो ऐसी बदमाशी करता है, दरवाजा बंद करके अंदर, लेकिन तेरे रात भर ये टेप सुन रहा था, कल सुना, हाँ, बड़ी शांति लग रही थी पकड़ा गया, ठीक है ना। तो वो बाहर से स्वीकार नहीं करेगा, कि मन को अच्छा लगता है, शांति लगती है। जैसे आप उडुपी में आप कीर्तन कर रहे थे, मेरे को लग रही थी बड़ी शांति, लग रहा था और सुनो, लेकिन क्या करें, भागने का टाइम हो रहा था, है ना। तो शोत मनोविरामात औषधि, तो मनोविरामात एक आदमी होता है, उसको पुण्य आत्मा है, अभी औषधि की तरह नहीं ले रहा, लेकिन कीर्तन अच्छा है तो बहुत अच्छा है। तो एक स्टेज हो गया, औषधि होती है जनरली जो साधक का है। और नेक्स्ट स्टेज, अभी जैसे बहुत लोग हैं फेस्टिवल में आते हैं मंदिर में, ठीक है, बहुत हजारों लोग, लाखों लोग, फिर उनको बोले आप आइए, हमारे हर वीक प्रोग्राम होता, संडे नहीं आते, लेकिन वो अब उनको नेगेटिव नहीं बोल सकते, उनको अच्छा लग रहा था वहाँ कीर्तन में, वो भी नाच रहे थे सबके साथ, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन उतने सीरियस नहीं है कि औषधि रूप में रेगुलरली संडे को आएंगे, करेक्ट। और लास्ट स्टेज होती है जो पापी पुरुष होता है, उसको अगर आप हरिना, ये बड़ी चिड़ लगती, क्या है, बंद करो ये सब, है ना, पत्थर फेंकते हैं या इरिटेट करते हैं, बंद करो, अगर डिस्टर्ब हो रहा है, मेरे को सोना है। हमारे एक मंदिर के अपोजिट था पहले एक जगह, हम सुबह के जो 7 बजे का गोविंदम आदि पुरुषम होता है ना, हम उसको माइक में लगा, हमने भी जैसे कुछ लोग लगाते हैं ना, बड़ा एक हॉर्न लगा देते हैं, पूरा चलता है 5 बारी दिन में, तो हमने भी लगा दिया भाई, गोविंदम आदि पुरुषम पूरे इलाके में सुनाई देता था। इमीडिएट विदिन 2 मिनट पुलिस का कॉल आता था, वो पुलिस फ़ोन कर देती, इनको बोलो बंद करो, मेरे को डिस्टर्ब हो रहा है। तो ऐसे लोग भी हैं जिनको डिस्टर्ब होता है। अगर आप एनालाइज करो, कुछ पाप कर्म में व्यतीत है, क्योंकि भगवान के व्याख्या में उनको क्यों दर्द क्यों हो रहा है, इरिटेशन क्यों हो रहा है, ठीक है। सो नारद मुनि बहुत ही एडवांस भक्त है। इसमें एक और चीज़ नोट करने की, प्रभुपाद ने जो आध्यात्मिक स्तर दिए हैं बड़े अलग तरह से दिए। श्रद्धा दी है कि इनिशियल लाइकिंग फॉर कृष्णा, पर्सनल वे में डिस्क्राइब किया है। साधु संगा मीन्स द पीपल हु हैव लाइकिंग फॉर कृष्णा, उनके पास जाते हो। भजन क्रिया, वो आपको कुछ प्रोसेस देते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। अनर्थ निवृत्ति को प्रभुपाद ने कैसे डिफाइन किया, योर मिसगिविंग्स अबाउट कृष्णा आर रिमूव्ड, पर्सनल डेफिशिएंसीज
एंड मिसगिविंग, जैसे आप कृष्णा को लाइक करते हैं, कुछ डाउट है कृष्णा ने ऐसा क्यों किया था, ऐसा क्यों किया था, असली में कृष्णा है क्या, ये आपके डाउट होते हैं, ये निकल जाते हैं। मिसगिविंग्स कैसे, जैसे आप ध्यान से साधना करने लगते हैं, डाउट निकल जाते हैं। शुरुआत होती है हमेशा श्रद्धा से, और उसके जब अनर्थ निवृत्ति हो जाती है, आ जाता है निष्ठा, फॉर्म फेथ। फिर उसके बाद आसक्ति, रुचि, थोड़ा टेस्ट आता है, जपा करने में लगता है कोई मुंह में मिश्री रख रहा है। रुचि, ऐसा लगता है आपको कभी मुंह में कोई मिश्री रख रहा है, मीठा मीठा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, ऐसा नहीं लगता। और उसके बाद कीर्तन में लगता है ना कभी कभी, कीर्तन में 1000 टाइम ज़्यादा पावरफुल होता है जपा से, लेकिन जपा पूरा करना है, छोड़ना नहीं। लेकिन कीर्तन क्या है, पॉसिबल नहीं होता है, भक्त चाहिए ना इकट्ठे। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा फाइनल स्टेज है अभावा, जब कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत होना शुरू हो जाता है। तो नारद मुनि अभी कृष्ण प्रेम स्टेज में नहीं थे, लेकिन ऐसा जो दर्शन हुआ उनका ऑर्डिनरी नहीं है। प्रभुपाद जी ने भाव स्टेज बोला है, तो लगता है ऐसी स्टेज में थे। एंड नेक्स्ट वो एनालिसिस है, बड़ा एनालिसिस है। मैं तो खाली एक श्लोक का एक शब्द पकड़ा है, और उसको ना जब दर्शन बंद हो जाता है तो भगवान वो रोने लगता है, तो भगवान बोलते हैं नारद अभी वेट कर, अभी तेरा अपक्वा है, तू कच्चा है अभी तू पूरी तरह भक्ति में पका नहीं है, कुयोगी है, अभी तू सिंसियर नहीं हुआ, सिंसियर तो अपनी साधना जारी कर, तेरे को कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा, तब तेरे को मैं हमेशा के लिए दर्शन होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना, कल रात को मेरे को भगवान को दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन अगर होता है तो जाता नहीं है, वो कंटिन्यूस रहता है। ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीबॉडी। आज हम सबके साथ आपके उड़पी गए थे। हाँ, मैंने उनको बोला कीर्तन सब फोटोग्राफ रिकॉर्ड रखो और कुमुदा माता जी को दे देना, ताकि देखेंगे क्या मिस करी हो। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण ठीक है, आप लोग आते रहिए ऐसे। अभी तो हरे कृष्ण प्रभु जी, 90 दिन मंदिर को खुलने के लिए 90 दिन भी नहीं बचे हैं। बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन, हमको बहुत तरह से चैलेंजिंग है। ठीक है, हरे कृष्णा। ऐसे ग्रुप में आते रहिए, हमें मंदिर में छोटी छोटी कुछ सेवा कर सकते हैं, है ना। आपने क्या क्या सेवा की, कुकिंग करा है ना, बुक्स को अरेंज किया। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, ठीक है, तो तरह तरह की सेवा आप कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कोटि हरे कोटि प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, जप करते रहिए अच्छा से। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रणाम गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की, जय भागवतम की जय। जय।